देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत से एक नाम है जो वेस्टर्न मीडिया को तंग किए हुए है, और वो नाम है पलकी शर्मा उपाध्याय का। अगर मीडिया को धो डालने का कोई कंपटीशन होता तो शायद एक गोल्ड मेडल भी ले आती। Let me show you another bizarre comment. This is from a man called Patrick Christie's. He calls himself a journalist, and this is what he said. Congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. If you're going down that road, let's start with reparations. Let's start with the colonial loot. Return that money first. और इस बात के कोई एक दो उदाहरण नहीं है, बल्कि गिनते गिनते थक जाओगे, इतने उदाहरण हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को इन्होंने खालिस्तान पर ऐसा घेरा कि बंदा बीच इंटरव्यू में अटक गया। The Al-Qaeda or the ISIS were to hold a referendum. If organizations like the Al-Qaeda or ISIS were to hold a referendum in New Zealand about something related to one of your Western partners, would you say the same? बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो इन्होंने बीबीसी को चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो कोहिनूर की लूट पर एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाओ। A list of suggestions for the BBC for their upcoming documentaries. Number 1, the Kohinoor and the colonial loot. Number 2, an outdated monarchy and unhealthy obsession with the royals. Number 3, racism in 2023. और ऑक्सफोर्ड यूनियन में खड़े होकर इन्होंने वहीं बैठे लोगों से ये कह दिया कि भारत ने अब तुम्हारे पैरामीटर्स पर खरा उतरने का जो बोझ था उसको सर से उतार फेंका है। India is not a timid democracy that tolerates terrorism or betrayals. When Pakistani terrorists attacked Kashmir's Pulwama, India carried out surgical strikes on Balakot. Today's India is not a pushover country, it's a world power. Today, invasions and colonialism are part of our history, not our identity. We are shaped by years of subjugation, not defined by them. We are excited about our global responsibilities, not wary of them. This change and confidence comes from growth at home. पलकी के इस भाषण को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया था, और ये सिर्फ अपने स्टूडियो में बैठकर नहीं बोलती हैं, बल्कि उनके सामने बैठकर बोलती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और इजराइल के विदेश मंत्री सब इनके सामने बैठकर सवालों के जवाब दे चुके हैं। और सवाल इतने तीखे कि श्रीलंका के विदेश मंत्री जब इनके एक सवाल पर लड़खड़ा गए तो बवाल भारत में नहीं मचा, श्रीलंका के अखबारों में मचा। नतीजा ये निकला कि इनका बनाया हुआ शो YouTube पर दुनिया का नंबर 1 इंग्लिश न्यूज़ चैनल बन गया और कई देशों में CNN और BBC तक को पीछे छोड़ गया। और इतना फेम मिलने के बाद भी ना, पलकी ने अपना स्टांस नहीं बदला और देखते ही देखते दुनिया भर की ऑडियंस के सामने भारत का एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट चेहरा बन गई। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये सवाल उठाने शुरू किए, इनके ऊपर ट्रोल्स की एक पूरी फौज छोड़ दी गई। इन्हें प्रोपेगेंडिस्ट बोला गया, गोदी मीडिया बोला गया, सरकार का भोपू तक कहा गया। बाहर के फोरम्स पर लिखा जाने लगा कि इनको मोदी भक्तों के अलावा कोई जानता तक नहीं है। और ये हमला सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं आया, बल्कि सरहद पार से भी आया, बल्कि उससे भी आगे से आया। The Economist has published an article on Indian media's coverage of diplomacy, and it mentions me by name. It also talks about our network. The new media focus on India's role in the world tends to be hyper-partisan, nationalistic, and often stunningly ill-informed. Do you know what's stunning? The level of Western arrogance on display here. Here's what The Economist is basically saying. Indian media is covering foreign affairs, but they don't know anything about it. It's an insult wrapped up as analysis. चीन के सरकारी चैनलों ने तो पूरे सेगमेंट इनके खिलाफ बना डाले। Here's something else that China hates. Our channel. And it's flattering, to be honest. If Beijing hates us, rest assured we are doing something right. और उधर पाकिस्तानी पत्रकारों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, पर इन्होंने ना सफाई दी, ना ये रुकी, बल्कि उल्टा एक ऐसा काम कर दिया जिसने भारत के नेशनलिस्ट के मन में एक उम्मीद जगा दी। तो सवाल अब ये उठता है कि ये सब कैसे कर पा रही हैं? इन्होंने भारत विरोधी ताकतों के बनाए हुए उस पूरे नैरेटिव को तोड़ा कैसे? और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी कंपनी की कुर्सी छोड़कर ये फिर से जीरो से शुरुआत क्यों कर रही हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। For example, you didn't call COVID-19 ever. You called it Wuhan virus. So no. India ranks 157 out of 180 on the Press Freedom Index. This is below Pakistan and Bangladesh. Are these rankings giving you sleepless nights? Okay. I love every time one of these reports comes. So there was a democracy index. India ranked below Niger in Africa in democracy. Niger continues to have a military junta. They jailed their president, but they are a better democracy than us.
There's something called the happiness index. Pakistan ranks above us. Broke, infested by terrorism. Ukraine ranks above us. Myanmar ranks above India. This is a country that's been living with the after effects of the coup and the junta and the civil war and everything that's going on there. Palestine ranked above us. देखिए, ये बात समझने के लिए कि पलकी शर्मा की व्यूअरशिप इतनी बड़ी बात क्यों है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ बाहर कितनी फौज खड़ी हुई थी। क्योंकि ये सिर्फ कुछ गलत खबरों वाली बात नहीं है, ये एक पूरी नैरेटिव मशीन है जो सालों से भारत को डिमोनाइज करती आई है। और ये बात ना सिर्फ मीडिया में छपी हुई खबरों की बात नहीं है। फ्रीडम हाउस ने भारत को फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट में एक फ्री कंट्री से हटाकर पार्शली फ्री कर दिया। वीडैम नाम की एक संस्था ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित कर दिया, यानी कि सिर्फ नाम का लोकतंत्र। अमेरिका के USCIRF ने भारत को उस लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं। मतलब जिस देश में हर 5 साल में सत्ता बदलती है उसे उस देशों के साथ बिठाया जा रहा है जहां पर चुनाव ही नहीं होते हैं। फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के दौरान अचानक से रिहाना ने किसान आंदोलन पर ट्वीट किया जिसके 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने किया, फिर कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किया और उसके बाद लिबरल्स की दीदी मिया खलीफा ने भी किया। ये सब कुछ ही दिनों के अंदर किया गया था और सबकी बातें एक ही जैसी थी कि भारत में इंटरनेट बंद किया जा रहा है और डेमोक्रेसी का गला दबाया जा रहा है। वो अलग बात है कि इनमें से आधों को शायद पंजाब और हरियाणा का नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन असली चीज जो थी वो ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के अंदर थी। इन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक डॉक्यूमेंट लगाया था जिसका नाम था ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव। और ये जो डॉक्यूमेंट था ये कोई अपील नहीं थी, ये एक पूरा प्लान था। उसमें तारीख के साथ लिखा हुआ था कि 13 और 14 फरवरी को अपने नजदीकी इंडियन एम्बेसी के बाहर में प्रोटेस्ट करना है आप लोगों को। ये तक लिखा हुआ था कि आपको कौन से हैशटैग्स चलाने हैं और अपने ट्वीट्स के अंदर IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक इन सबको टैग भी करना है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये तक लिखा हुआ था कि रिहाना कब ट्वीट करेगी और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सामने आया इन्होंने उसे कुछ ही घंटों के अंदर डिलीट करके एक साफ सुथरा वर्जन पोस्ट कर दिया। बेसिकली इस लड़की ने पूरे आंदोलन की टूल किट को एक्सपोज कर दिया था और ये आज तक चल रहा है क्योंकि पिछले ही महीने दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का जश्न मनाने के लिए यही ग्रेटा थनबर्ग लंदन के एक कार्यक्रम में पहुंची थी। लेकिन ये सब तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ना जाने ऐसे कितने आर्टिकल्स छापे गए हैं जिसमें भारत की डेमोक्रेसी पर लेक्चर दिया गया है। टाइम्स ने अपने कवर पर मोदी की तस्वीर छापकर लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। द इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पर लिखा इंटॉलरेंट इंडिया। द गार्डियन ने दिल्ली दंगों को हिंदू नेशनलिस्ट रैम्पेज कहकर ये लिख दिया कि मोदी ने आग भड़काई है। इनफैक्ट द इकोनॉमिस्ट ने वोट पड़ने से पहले सुझाव दे दिया था कि अगर मोदी बड़ी जीत के साथ आते हैं तो ऑपोजिशन को ये रिजल्ट मानने ही नहीं चाहिए। उसी दौर की हेडलाइन पर हुई एक स्टडी में निकला कि 6 बड़ी हेडलाइंस में से 4 में हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ था और हर बार ये हिंदू शब्द वायलेंस के साथ इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है और इसका जवाब खुद पलकी शर्मा ने दिया था। पलकी ने बताया कि जब ये विदेशी अखबार भारत में रिपोर्टर्स के लिए जॉब्स निकालते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ही लिखा होता है कि कैंडिडेट को सरकार के एजेंडा को चैलेंज करना आना चाहिए और इसके साथ साथ भारत की स्टोरी पर सवाल करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब भाई साहब आपने पहले ही तय कर रखा है कि खाना खराब है और आप बावर्ची इसलिए रख रहे हो ताकि वो सिर्फ खराब चीजें ढूंढ कर लाए, उन्हें पकाए और फिर कहे देखो तो खाना तो खराब बना है। और इसी वजह से वेस्टर्न मीडिया लॉबी में जितने भी लोग हैं सब एक ही पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से होते हैं। मेहदी हसन इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है जिसको हर दूसरे दिन भारत के अंदर फासिज्म दिख जाता है। और ये बात सिर्फ इन जर्नलिस्ट तक सीमित नहीं है क्योंकि इनके पीछे एक पूरी एकेडमिक जमात खड़ी हुई है जिनकी लिखी किताबें और रिपोर्ट्स ये अखबार अपने खबरों के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन बताकर छापते हैं। जैसे फ्रांस के क्रिस्टोफर जेफलट हैं जो साइंस PO और किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाते हैं और जिनकी पूरी किताब का नाम ही है मोदीज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी। या फिर कैलिफोर्निया में बैठी अंगाना चैटर्जी हैं जिन्होंने जेफलट के साथ मिलकर एक और किताब लिखी जिसका नाम है मेजोरिटेरियन स्टेट, हाउ हिंदू नेशनलिज्म इज चेंजिंग इंडिया। अब भाई जब ऐसे लोग भारत के इश्यूज को दुनिया को बताएंगे तो ऑब्वियसली ग्लोबल ऑडियंस को भारत की असली कहानी पता ही नहीं चलेगी। और भाई ये लोग ऐसा करें भी क्यों ना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कई एकेडमिक्स जो हैं उनको पश्चिमी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती रही है और उसमें जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम भी सामने आया था। इनफैक्ट इसी कारण से जब भी भारत के अंदर कोई आतंकी हमला होता है तो ये लोग उसे भी टोन डाउन करना शुरू कर देते हैं और भारत को ही विलेन बना देते हैं उसके अंदर। आप पहलगाम का एग्जाम्पल ले लीजिए जहां आतंकियों ने 26 लोगों को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी उनके परिवार के सामने। लेकिन वेस्टर्न प्रेस में 10 में से 8 खबरों में इसे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी हमला नहीं बल्कि कश्मीर से जुड़ा हुआ एक लोकल मामला बताया था और उन हत्यारों को टेररिस्ट नहीं बल्कि गनमैन घोषित कर दिया था। और देखिए इसका रीजन भी है, इन वेस्टर्न न्यूज रूम्स में भारत की खबरें लिखने वाले कई पत्रकारों में खुद पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल हैं। I remember doing a story post the Pahalgam attack. 8 out of 10 stories
in the international press talked about Pahalgam as related to Kashmir and not a terrorist attack, which was problematic. It was a terrorist attack. Were written by Pakistanis in international news. और यही नहीं, जब ये सब चीजें सालों से हो रही थी तब इस पूरे दौर में हमारी अपनी इंग्लिश मीडिया या फिर जर्नलिस्ट ने इन लोगों को काउंटर करने के बजाय वेस्टर्न ऑडियंस को अपील करने के लिए इन्हीं की हाँ में हाँ मिला दी थी। फॉर एग्जांपल, आज वॉशिंगटन पोस्ट में भारत पर सबसे ज्यादा लिखने वाला नाम है राणा आयुब का, जो टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन में भी छपता है, और जिसके एक आर्टिकल का टाइटल था द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू इग्नोर द रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। तो भाई साहब, एक तरफ बाहर वाले हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे ही देश के लोग आग में घी डाल रहे थे और जवाब देने वाला कोई था नहीं। और इसीलिए साल दर साल दुनिया के मंच पर भारत की सिर्फ नेगेटिव इमेज ही एम्पलीफाई होती रही थी। और ठीक इसी वक्त इस पूरी मशीन के सामने एक ऐसी महिला सामने आती है जिसके पास कोई बड़ा विदेशी ब्रांड नहीं था, ना पुराना नाम था और ना ही अरबों का पैसा था। पलकी शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन में की थी और फिर वो हिंदुस्तान टाइम्स चली गई। उसके बाद CNN IBN में इन्होंने करीब 1 दशक बिता दिया और यहीं पर उन्होंने वो काम किया जो शायद उस वक्त तक किसी भी भारतीय पत्रकार ने नहीं किया था, यानी ये बराक ओबामा के चुनाव अभियान को कवर करने वाली पहली भारतीय पत्रकार बनी थी। फिर इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ये वियॉन से जुड़ गई और वहां मैनेजिंग एडिटर बन गई और वहां उन्होंने एक शो शुरू किया जिसका नाम था ग्रेविटास। अब आप ये समझिए कि ग्रेविटास इतनी बड़ी बात क्यों था। उस वक्त तक हमारे यहाँ पर विदेशी खबरों का जो मतलब था वो सिर्फ इतना ही था कि BBC ने कुछ कह दिया या CNN ने कुछ कह दिया, वो हम दिखा देते थे। और हमारे प्राइम टाइम में क्या होता था, या तो नेता चिल्ला रहे होते थे या फिर कोई हत्या का केस चल रहा होता था। दुनिया की खबर पर भारत का अपना नजरिया वो तो कहीं था ही नहीं। ग्रेविटास ने पहली बार वो जगह भरी क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा प्राइम टाइम इंटरनेशनल शो था जो दुनिया की घटनाओं को भारत की नज़र से दिखाता था। और इनका फॉर्मूला ना बहुत ही सीधा और सिंपल था। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई पैनल नहीं, पैनल में बैठे हुए 8-10 लोग नहीं और कोई लाल लाल ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पट्टी भी नहीं, बस पलकी शर्मा उपाध्याय और फैक्ट्स। और इसका रिजल्ट वो निकला जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वियॉन का यूट्यूब चैनल दुनिया का नंबर 1 इंग्लिश न्यूज़ चैनल बन चुका था और कई देशों में इसने CNN और BBC इन जैसे 100 साल पुराने नामों को पीछे छोड़ दिया था। ग्रेविटास को बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ शो का अवार्ड मिला और पलकी को टीवी एंकर ऑफ द ईयर चुना गया। फिर इन्होंने वियॉन छोड़ दिया और फर्स्ट पोस्ट से जुड़कर वांटेज नाम का एक शो शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी वही हुआ क्योंकि वांटेज के शुरू होने के मात्र 5 महीनों के अंदर अंदर फर्स्ट पोस्ट की जो यूट्यूब व्यूवरशिप थी वो 600% से ज़्यादा बढ़ गई और 7 महीने के अंदर वो चैनल 20 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका था। देखते ही देखते पलकी शर्मा एक ब्रांड बन चुकी थी। इन्होंने ये साबित कर दिया था कि दुनिया की खबरों के लिए भारत को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी न्यूज़ ग्लोबल स्टेज पर खुद बता सकते हैं। हम चीज़ों को अपनी नज़रों से देख सकते हैं और दुनिया उसे सुन भी सकती है। और यही वो चीज़ थी जो बाहर वालों को चुभने लगी थी। देखिए, अब तक नियम यह था कि बाहर वाले भारत पर सवाल उठाते थे और भारत सफाई देता था। पलकी शर्मा ने यह नियम ही तोड़ दिया और वो भी 1-2 मुद्दों पर नहीं। किसान आंदोलन को ले लीजिए आप। जब पूरी विदेशी मीडिया इसे लोकतंत्र की लड़ाई बताकर पेश कर रही थी, इन्होंने एक एपिसोड किया जिसका टाइटल था क्या खालिस्तानी एलिमेंट्स ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उस वक्त पलकी को इस एपिसोड के कारण खूब गालियां पड़ी, पर उसके सिर्फ 2 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में FIR दर्ज की और स्पेशल CP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये टूलकिट एक प्रो खालिस्तानी संगठन ने बनवाया था। मतलब जो बात ये दिसंबर में अपने शो पर कह रही थी वो फरवरी में पुलिस ने कंफर्म कर दी। इसके बाद कश्मीर पर इन्होंने वो किया जो हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया। इन्होंने पूरा एपिसोड बनाकर दुनिया को समझाया कि कैसे कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए एंटी इंडिया ताकतें एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं। मतलब पहली बार कश्मीर पर भारत का पक्ष अंग्रेजी में ग्लोबल ऑडियंस के सामने पूरे इतिहास के साथ रखा जा रहा था। इसके बाद खालिस्तान का मुद्दा आया जब ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत पर सीधा आरोप लगा दिया। उस दौर में जब बाकी दुनिया की मीडिया भारत को कटघरे में खड़ा कर रही थी, पलकी ने रोज एपिसोड करके बताया कि कनाडा में बैठे इन लोगों का असली रिकॉर्ड क्या है और जयशंकर ने दुनिया के मंच पर ट्रूडो को कैसे जवाब दिया है। और ऐसे ही ना जाने कितने मुद्दों पर पलकी ने भारत का स्टैंड रखा है, चाहे वो भारत का स्पेस मिशन हो। Let me show you another bizarre comment. This is from a man called Patrick Christies. He calls himself a journalist and this is what he said. Congratulate India on landing on the dark side of the moon.
I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year, but I think the British taxpayer should keep hold. Now, India has landed on the moon, and British influencers say return our aid money. If you're going down that road, let's start with reparations. Let's start with the colonial loot. Return that money first. And we have the bill. Some $45 trillion. That's what Britain looted from India between 1765 and 1938. And this is just an estimate. The actual figure could be much higher. या फिर रशिया से ऑयल डील का मामला हो. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we are going to tear the hell out of you. For starters, keep the threats to yourself. India is not Greenland or Canada. New Delhi has resisted Western pressure since the war started. So Senator Graham should stay in his lane. एंटी-इंडिया रेसिज्म हो. Apple now produces iPhones in India, and the Chinese don't like it. Look at one comment on their social media. This is what it says. Let's tear off the packaging and savor the aroma of curry. How original, curry and India. Some Chinese citizens are also discussing how to identify a made-in-India iPhone. You heard one theory. Check for the curry smell. India was a country in Southeast Asia. Blame Chinese propaganda for this. In the last 2 decades, China was a shiny new economy everyone wanted to make in China, but now companies are heading out. Intel, Microsoft, Nike, Dell, Apple. And where are they going? To friendlier shores, including India. या फिर टैरिफ का मामला हो. Trump has made his choice. He's siding with Pakistan, shaking hands with the generals of Rawalpindi and picking a fight with New Delhi. His outburst yesterday makes it quite clear Trump is not getting what he wants from India, and he is not hiding his frustration. Just look at the trade deals that he signed recently with other countries. One theme runs through all of them. Tariff-free access for American exports. And Trump wants the same from India, but India is not giving in. New Delhi wants a deal that is fair, balanced. लेकिन पलकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ बड़े राजनीतिक मुद्दों तक नहीं रुकती हैं. वो भारत के खिलाफ हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ भी ग्लोबल स्टेज पर आवाज उठाती आई है. इस महिला ने कई मौकों पर वेस्टर्न हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया है. This cartoon appeared on a German magazine called Der Spiegel. It's about India's population overtaking China's. India is the overcrowded train with people hanging outside the compartment. And China is a sophisticated bullet train. The India of 2023 is not about run-down trains with people on the roof. It's about modern, sustainable machines. Cartoons are supposed to be subtle yet accurate. This one is neither. It's a crass attempt at peddling old and racist ideas about India. The West simply cannot accept India's growth story. How can a former colony with 1.4 billion people do what Britain or Germany does? लेकिन एक्चुअल नैरेटिव ब्रेकिंग चीज ये है कि ये सिर्फ अपने स्टूडियो से नहीं बोलती, बल्कि उनके सामने बैठकर बोलती हैं जो मैटर करते हैं. पलकी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया और उनके मुंह पर खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया. क्या आपके देश में खालिस्तानियों ने अपना नकली रेफरेंडम करवा लिया है और आप कुछ भी नहीं कर रहे? And New Delhi has raised concerns in the recent past vis-a-vis the Khalistani separatists that operate in New Zealand, and last year they also held a referendum that talked about breaking up the state of Punjab from India. The government of India, of course, objected to it. How do you propose to address these concerns? न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन का जवाब वही घिसा पिटा था कि हमारे यहाँ पर तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है. Well, the bottom line is that in our democracy, we believe in the freedom of speech. We have very clear, we expect that speech to be legal, compliant. तो पलकी ने पूछ लिया कि क्या भाई साहब आईसिस न्यूजीलैंड में बैठकर आपके किसी साथी देश के खिलाफ रेफरेंडम करवा दे तो क्या उसकी भी आज़ादी है आपके देश में? If the Al-Qaeda or the ISIS were to hold a referendum, if organizations like the Al-Qaeda or ISIS were to hold a referendum in New Zealand about something related to one of your Western partners, would you say the same? और इसके बाद प्रधानमंत्री साहब वहीं पर अटक गए और भाई 1-2 लाइन दोहराते रह गए. और न्यूजीलैंड के बाद पलकी ने कहा कि तुम्हें हमारा बाजार चाहिए, तुम्हें हमारा टैलेंट भी चाहिए, पर हमारी सेंसिटिविटी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है. और ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की बात नहीं है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, फिनलैंड के प्रेसिडेंट और इजराइल के विदेश मंत्री सब इनके सामने बैठकर सवालों का जवाब दे चुके हैं. और सवाल ऐसे होते हैं कि रायसीना डायलॉग्स में जब श्रीलंका के विदेश मंत्री से इन्होंने एक सवाल पूछा तो वो लड़खड़ा गए. और इसके बाद जो बवाल था वो भारत में नहीं हुआ बल्कि श्रीलंका में हुआ कि भाई हमारे विदेश मंत्री ने इतना हल्का जवाब क्यों दिया है. तो देखिए पलकी ने एक्चुअली में ये किया है कि इन्होंने इस पूरी लड़ाई को स्टूडियो से उठाकर उस मेज तक पहुंचा दिया है जहां मैटर करने वाले लोग खुद बैठते हैं. और आज हालात ये हो चुके हैं कि जब ये बोलती है तो पॉलिटिशियंस, डिफेंस एक्सपर्ट्स और बड़ी कंपनियों के सीईओ तक ध्यान से सुनते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ये संकेत उपाध्याय की पत्नी है जो कि लेफ्टिस्ट है, पर ये मैटर नहीं करता
क्योंकि जो वॉइस उठ रही है वो राइट साइड की उठ रही है और नेशनलिज्म पर उठ रही है। लेकिन पलकी ने अभी तक जो किया था ना वो काफी नहीं था, क्योंकि जिस लेवल पर वर्ल्ड मीडिया में प्रोपेगेंडा फैला हुआ है और जिस तरीके की मोनोपोली इनके पास है, उसके सामने पलकी शर्मा का एक शो बहुत छोटी चीज है। और इसीलिए पलकी शर्मा कह रही हैं कि हमें अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना हम हमेशा किसी और के लिखे हुए सच में फंसे रहेंगे। इसी सोच के साथ इन्होंने वो फैसला लिया जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसी साल जनवरी में इन्होंने फर्स्ट पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। 24 साल का करियर, देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मैनेजिंग एडिटर की कुर्सी और सबसे ऊपर पहुंचा हुआ शो, ये सब छोड़कर इन्होंने कहा कि सब कुछ जीरो से शुरू करते हैं। और सब कुछ जीरो से शुरू करने की वजह इन्होंने खुद बताई। इनका कहना है कि एक शो से ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती, क्योंकि एक शो एक आवाज़ है और सामने वाले के पास पूरा तंत्र है, सैकड़ों रिपोर्टर, दर्जनों देशों में दफ्तर और वो पूरी चेन जिससे दुनिया की हर खबर वन साइड नैरेटिव में छन कर निकलती है। तो 7 मई को इन्होंने अपनी नई कंपनी लॉन्च कर दी, जिसका नाम है इंडिया ग्लोबल रिव्यू। और ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये भारत में बना एक ग्लोबल न्यूज़ रूम है, जिसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा मिला हुआ है, जो अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका तक अपने खुद के ऑफिसेज खोलने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च के वक्त इन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ दुनिया की बातचीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे बना रहा है। और आज एक ऐसे मंच की ज़रूरत है जो दुनिया को भारत की नज़रों से दिखाए। I don't think that one channel alone can pull that off. Like I said earlier, we are a cog in the wheel, but we very much want to amplify India's point of view and shine a light on the achievements and the strengths, and also raise the problems that persist and that must be identified, acknowledged and addressed if India is to really be what we want it to be, a Viksit Bharat. और यहीं पर इस पूरी कहानी का असली सबक है, क्योंकि आप कितनी भी मिसाइलें बना लो, अगर आपका नरेटिव कोई और लिख रहा है और कोई और उसे बता रहा है, तो आप हर जीत के बाद भी कटघरे में ही खड़े रहोगे। और इससे नुकसान सिर्फ रिस्पेक्ट का नहीं होता। जब दुनिया में आपकी इमेज एक अस्थिर देश की बन जाती है, तो उसका असर सीधे आपके निवेश पर पड़ता है, आपके व्यापार के ऊपर पड़ता है और उन समझौतों पर पड़ता है जो दूसरे देश आपके साथ करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और जब कोई देश आपके ऊपर पाबंदी लगाने की बात करता है, तो वो अपनी संसद में यही रिपोर्ट, यही हेडलाइन उठा कर दिखाता है। ये बात ना चीन ने बहुत पहले समझ ली थी और सोच समझकर उसने अपना पूरा ग्लोबल मीडिया नेटवर्क खड़ा कर लिया। इवन कतर जैसे रेडिकल देश ने भी अपने नैरेटिव को दुनिया में पहुंचाने के लिए अल जजीरा जैसे नेटवर्क को खड़ा कर लिया था। अब भले ही उनका नेटवर्क कितना भी प्रोपेगेंडा करता हो, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कम से कम ये ग्लोबल लेवल पर अपने देश के लिए नैरेटिव तो बना ही रहे हैं। और भारत, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, आज तक इस मैदान में लगभग खाली हाथ ही खड़ा हुआ है। तो भारत का काम ना केवल एक पलकी शर्मा से नहीं चलेगा, क्योंकि सामने CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, ये सब खड़े हुए हैं और इनके पीछे 100 साल का ढांचा है, अरबों का पैसा है। हमें ऐसे 10 प्लेटफॉर्म्स चाहिए, हज़ारों रिपोर्टर्स चाहिए और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग चाहिए जो सफाई देने की बजाय सवाल पूछें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में ये लड़ाई जीत सकता है? क्या हम अभी भी शुरू कर सकते हैं, या फिर हम हमेशा दूसरों की लिखी हुई कहानी में जीते रहेंगे? मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। आई वुड लव टू रीड देम। और हाँ, हमने अभी एक और नया चैनल बनाया है जिसका नाम है अनुज भारद्वाज। उस पर 2 वीडियोस डाली जा चुकी हैं और रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आ चुका है। लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने ऐसा कुछ यूट्यूब पे देखा ही नहीं है आज तक। तो आप तुरंत जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।